Hello student, good morning. Jai Sri Swaminarayan. Today we will study an alien hands, the 5th chapter, Golu grows a nose. There was a time when the elephant had no trunk. It was a long time, and at that time elephant had no trunk. Golu, a baby elephant with a bulgy nose. You can see in picture there is a picture of elephant which has bulgy nose, and this is baby elephant and is full of question. He asks lots of question and disturb the animals, confuse the animals. He goes to the Limpopo river to find out more about the crocodile's eating habits. One day he went to Limpopo river to ask the crocodile about his eating habits. Long ago, the elephant had no trunk. He had only a bulgy nose as big as boot. कितने जैसा था वो boot के जितना बड़ा था. He could wiggle it from side to side. Wiggle means movement करता यहाँ से side to side, but couldn't pick up things with it. We know that the elephant used his trunk to pick the things with the help of trunk. Is it? There was a baby elephant called Golu, और एक बेबी एलिफेंट था जिसका नाम था गोलू. He too had no trunk but only a bulgy nose as small as a small boot. So you can see in picture there is a picture of गोलू. ओके वो उसका नाम गोलू है और उसकी ट्रंक जो है वो लॉन्ग नहीं है, ओनली बल्कि trunk he has. Golu was full of question. He asked his tall aunt, the ostrich. Ostrich से पूछता है, why don't you ever fly like other birds? So he asks question. Ostrich को क्यों कहता है कि आप other animals, birds की तरह क्यों नहीं उड़ पाती? Then he asked tall uncle giraffe. Giraffe से पूछता है. So here देखिए, जब ओस्ट्रिच की बात आई तो उसमें क्या आया? आंट आई, टोल आंट आई. राइट, ओस्ट्रिच जो होता है वो टोल होता है अदर बर्ड्स से. देन अंकल जिराफ, उसको भी टोल कहा, वो भी लंबे है. तो जिराफ से कहते हैं कि व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पोर्टी. वी नो दैट द बॉडी ऑफ जिराफ इज़ फुल ऑफ स्पोर्ट होते. तो उसने कहा कि आपकी स्किन पर इतने सारे स्पॉट्स क्यों है? ही आस्क हिज ह्यूज अंकल द हिपोपोटेमस. तो हिपोपोटेमस को ह्यूज बताए, बहुत बड़ा होता है. वाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड. उसको कहते हैं कि आपकी आंखें इतनी रेड क्यों होती है हमेशा. ही आस्क्ड हिज हेरी अंकल द बबून. बबून इज़ अ काइंड ऑफ मंकी. तो उसको कहता है कि उसके लिए यहाँ पर वर्ड है हेरी अंकल. सो टोल आंट, टोल अंकल, ओके, ह्यूज अंकल, हियर हेरी अंकल. वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन. अब ये बबून से पूछता है कि मेलन का टेस्ट मेलन जैसा क्यों है. द ओस्ट्रिच, द जिराफ, द हिपोपोटेमस एंड द बबून सेड नो आंसर टू गोलूज क्वेश्चन, बिकॉज उसका जो क्वेश्चन था कंफ्यूजिंग वाला था, उसका आंसर उसके पास था ही नहीं. Golu is a naughty baby, they said. He asked such difficult questions, and that is why they were not able to answer his questions. One day, Golu met the Maina bird sitting in the middle of bush, and he asked her. So one day, Golu asked Maina. Maina is a bird. What does the crocodile have for dinner? उसको कहते हैं कि crocodile dinner में क्या खाते हैं? The Maina said, go to the bank of the great grassy Limpopo river and find out. So उसने कहा कि एक ग्रासी लिम्पोपो रिवर है, वहाँ पर तू जा, उसको ही पूछ कर तू आ. सो स्टूडेंट यहाँ पर बहुत सारे ये लेसन में एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं. बहुत सारे एडजेक्टिव जो है वो यूज़ हुए हैं, लाइक ग्रासी लिम्पोपो, टोल अंकल, टोल आंट, हेरी अंकल, ह्यूज अंकल. So these are the adjectives, okay, and we already studied about the adjectives. So here Maina told Golu to ask such a difficult question to crocodile itself, okay, and crocodile is living in a great grassy Limpopo river. Golu went home. He took 100 sugar canes, 50 dozen bananas and 25 melons. So what did Golu bring with him? क्या लिया उसके साथ? Took 100 sugar canes, 50 dozen bananas and 25 melons. Then he said to his family goodbye. So
he said his family goodbye. I am going to the great grassy Limpopo river. ओके अपने फैमिली को गुड बाय कह के वो कहता है कि वो लिम्पोपो रिवर पर जा रहा है. आई विल फाइंड आउट वॉट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर. ही वॉन्टेड टू नो वॉट क्रोकोडाइल हैज़ इन डिनर. ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल एंड डिडंट नो वॉट वन लुक्ड लाइक. उसने कभी क्रोकोडाइल को देखा ही नहीं था. इवन ही डोंट नो, he doesn't know कि कैसा वो दिखता है. He met a python and asked him, have you ever seen a crocodile? You can see in picture. He is asking a question to crocodile कि कभी उसको देखा है. What does he look like? What does he have for dinner? So he had asked him 3 questions. उसको 3 क्वेश्चन पूछता है कि कभी देखा है, कैसा दिखता है और डिनर में क्या खाता है. The python uncoiled. कोइल्ड एंड अनकोइल्ड. कोइल मतलब गोल गोल अपने आप को कोइल बना देना एंड अनकोइल मतलब खोल देना. द पाइथन अनकोइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री बट सेड नथिंग. गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कोइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम. सो गोलू ऑल्सो हेल्प्ड हिम टू कोइल अराउंड द ब्रांच. वो पाइथन को हेल्प करता है फिर से कोयल बनाने में एंड गुड बाय एंड सेड गुड बाय टू पाइथन. गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग sugar canes, bananas and melons, whatever he brought with him. After a few days he reached the very edge of the great grassy Limpopo river. On the bank of the river he saw a log of wood. ओके सो ही आफ्टर मेनी डेज ही रीच्ड. वहाँ पर वो पहुँच जाता है लिम्पोपो रिवर के पास, ग्रासी लिम्पोपो रिवर्स. ऑन अ बैंक ऑफ रिवर ही सो अ लॉग ऑफ वुड. उसने देखा कि एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है. इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट इट. इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम. एक्सक्यूज मी सेड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल. एक्चुअली वो क्या था? इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल. वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं था बट वो क्रोकोडाइल था. एंड विंक्ड एट हिम. विंकिंग आंखों के पलकारे से उसको वो देखती है और उसको ही जाकर ये गोलू है पूछता है कि क्या आपने क्रोकोडाइल को देखा है. द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन. उसकी आंखें जो है विंकिंग करती है एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड. कम हियर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल. व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन. उसने कहा कि माय डियर कम नियर मी. मेरे पास आओ. क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो. आई वॉन्ट टू नो. गोलू ने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ. कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल. एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू. ओके सो हियर क्रोकोडाइल सेड द टीयर्स फ्रॉम इट्स आइज एंड सेड दैट कम क्लोज लिटिल वन आई एम द क्रोकोडाइल. उसने कहा कि मेरे पास आओ, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ. गोलू वॉज अफ्रेड बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड. वो बैंक मतलब किनारे पर आकर बैठता है एंड कहता है कि यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर. यू आर द वेरी पर्सन मीन्स तुम यही इंसान हो कि जिसके बारे में मैं. पर्सन यहाँ पर एनिमल है फिर भी पर्सन यूज़ हुआ है तो एक इमेजिनेशन स्टोरी होती है और इसलिए यहाँ पर कभी कभी स्टोरी में भी इंसान जो एनिमल होते हैं उसको इंसान के ज़रिए दिखाते हैं. तो उसने कहा कि तुम वही इंसान हो जिसको मैं मिलना चाहता था. प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर. मुझे बताओ कि तुम डिनर में क्या लेती हो. कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू शेड द क्रोकोडाइल. विस्पर मीन्स कान के आसपास धीरे से कुछ बोलना. ओके तो उसने कहा कि तुम अब मेरे पास आओ, मैं तुमको बताती हूँ कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाते हैं. गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कोट हिम बाय द नोज एंड यू कैन सी इन पिक्चर. क्रोकोडाइल ने उसको नोज के ज़रिए पकड़ लिया. आई थिंक शेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर. एंड क्रोकोडाइल सेड that day crocodile will be the dinner of its. Let me go, you are hurting me, Mr. Crocodile, screamed the Golu. Golu shouted and requested crocodile to leave him. And he said that you are hurting me. तुम मुझे पेन कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो. The python, who had been quietly following Golu, came to the bank and said, if you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream. And here
पाइथन सेड दैट कि अगर तुम अपने आप को खींचोगे नहीं, इफ़ यू विल नॉट ड्रैग यू, अगर तुम अपने आप को ड्रैग नहीं करोगे, इफ़ यू विल नॉट पुल यू, पुल मतलब खींचना, अपने आप को नहीं खींचोगे, दिस विल ब्रिंग यू इनटू द वाटर, दिस विल ड्रैग यू इनटू द वाटर, ये तुझे पानी में खींच कर ले जाएगी. एंड yes, you can see in the picture, there is a picture on page number 32. Golu sat back on his little haunches and pulled. So you can see in picture कि गोलू जो अपनी haunches पर है बैठ जाता है, अपने आप को pull करता है. He pulled himself. He was pulling. The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail, and he also pulled. So from both sides. Here the Golu was pulling himself फ्रॉम द आउट ऑफ द वाटर एंड येस क्रोकोडाइल अपने वो उसकी ट्रंक है उसको पुल कर रहा था. सो बोथ साइड, यहाँ पर ये अपने आप को खींच रहा था और वहाँ पर जो है क्रोकोडाइल उसको खींच रही थी. देन द पाइथन coiled himself round Golu's stomach and said, let's pull harder. So here also Python helped Golu. That Python coiled to its back. आप उस देख सकते हो कि उसके बैक में वो जो है वो अपने आप को कोयल करता है, कहता है कि अब लेट्स पुल हार्डर, अब तुम अपने आप को और जोर से खींचो. गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड. सो गोलू मड में अपने 4 पैर रखकर अपने आप को खींचता है. द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग. अब जो ये नोज वो स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच मीन्स खींचता है. एट ईच पुल द नोज grew longer and it hurt Golu. And in this way the nose grew longer and longer. जो नाक, उसका जो नाक था वो लंबा होकर बढ़ता गया. And it was hurting Golu. उसको पेन कर रहा था. The nose was now 5 feet long. अब कितना बड़ा हो गया? 5 फीट बड़ा हो गया. बट इट वॉज फ्री एट लास्ट. लेकिन वो लास्ट में वो फ्री हो गए. गोलू सेट डाउन विथ हिज नोज wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool. Then Golu wrapped means cover करना, big banana leaf में वो nose को wrap कर दिया. क्यों? क्योंकि वो उसको पेन हो रहा था. तो उसने क्या किया, उसमें लीफ में कवर कर दिया. एंड ग्रेट एंड ग्रासी लिम्पोपो रिवर उसको हंग कर दिया. कहाँ पर? तो रिवर पूल के अंदर. गोलू शेड देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक. इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक. उसको लगा कि वो वापस जैसा था वैसा हो जाएगा. सो ही वेटेड देयर फॉर द 2 days टू कूल द nose and to shrink the nose, but yes it was cool. अब वो कूल तो हो गया, इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक, वो श्रिंक हुआ नहीं और ऐसा लंबा का लंबा रह गया. एट द एंड ऑफ द सेकंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर. दूसरे दिन क्या हुआ, फ्लाई जिसको मैं कहते हैं मक्खी आई और उसके शोल्डर पर स्टिंग किया. स्टिंग तो उसको काटती है. गोलू लिफ्टेड हिज नोज एंड विथ इट हिट द फ्लाई डेड. उसने क्या किया, अपनी ट्रंक से उसको हिट किया तो वो फ्लाई मर गई. सो इन दिस वे एडवांटेजेस नंबर 1. तो ये उसका एडवांटेज नंबर 1 था कि उसकी हेल्प से वो छोटे छोटे इंसेक्ट को वो यहाँ से भगा सकेगा. राइट. एडवांटेजेस नंबर 1, ही इज द पाइथन ने कहा अरे वाह ये तो एडवांटेजेस हो गया, उसकी ट्रंक से उसने उस मक्खी को मार दिया. यू कुडंट हैव डन eat with a small nose. Try and eat a little now. अब ये जो पाइथन है वो कहता है कि तुम्हारी छोटी जो नोज़ होती उससे तो ये काम नहीं हो पाता. Try and eat a little now. उसने कहा कि अब कुछ खाने की कोशिश करो. गोलू put out his trunk and plucked a large bundle of grass. उसने क्या किया, अपनी ट्रंक से he has taken a large bundle of the grass with the help of his trunk. He dusted it again in four legs and stuffed it into his mouth. So with the help of trunk he dusted against the 4 legs. उसने 4 legs में dusted मतलब उसमें से धूल जो होती है वगैरह वो उसको छांट कर वो उसकी ट्रंक की हेल्प से वो खा सकता है.
एडवांटेजेस नंबर 2, ही इज़ द पाइथन। पाइथन ने कहा अरे वाह ये तो आपका दूसरा एडवांटेजेस है। मीन्स विद द हेल्प ऑफ ट्रंक ही कैन ईट, ही वॉज एबल टू ईट। यू कुडंट हैव डन इट विद स्मॉल नोज। उसने कहा कि छोटी नाक से तो नहीं कर सकता था। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ। उसने कहा कि तुझे नहीं लगता कि आज बहुत ही सन गर्म है, बहुत गर्मी है। Golu scooped up some mud from the bank and slapped it on his head as it was very hot outside. So he scoop means अपने ट्रंक में वो पानी भरा, मड भरा, and slapped on its head, on his head, उसकी हेड पर वो स्लैप करता है। स्लैप मतलब थप्पड़ मारना, बट यहाँ पर थप्पड़ नहीं है, वो छांटता है। एडवांटेजेस नंबर 3, ही इज़ द पाइथन। पाइथन कहता है कि अरे ये तो थर्ड एडवांटेजेस है। यू कुडंट have done it with a small nose, and yes, ये small nose से possible नहीं था। Thank you Mr. Python, said Golu gratefully. Gratefully means thankfully. I will remember all these and now I will go back to my family. And Golu said thank you to Python because Python also helped him and said that he has go to his home. So in this way गोलू हैज़ हीज ट्रम्प। पहले जो एलिफेंट की इतनी बड़ी ट्रम्प नहीं होती थी, तो हाउ गोलू ग्रोज अ नोज़, उसका नोज़ जो है वो कैसे ग्रो हुआ, ये हमने स्टोरी में पढ़ा। ओके, तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर है वो आपकी होमवर्क बुक में लिखने हैं। टोटल 10 क्वेश्चन एंड आंसर आर देयर एंड यू हैव टू राइट 10 क्वेश्चन एंड आंसर इन योर होमवर्क नोटबुक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।